Hello. Before I start the show, please pardon me in advance because my upcoming guest may have met with some untoward situations, like he may have fell down from his chair, or maybe he forget what he wants to speak. CTY doesn't take any responsibility of this situation because he would solely be responsible for all his past experiences, which he is going to tell to us in a few minutes. So, welcome to the new and some out of the track video podcast of Carisham Young. I'm your host Shipra Sharma, and I'm today coming up with a Pune based boy who is actually accident prone. Pardon me if he interrupts me somewhere in between by shouting man on. And he's the funny bone. And today's podcast is with Arav Raj, who is cracking everything wherever he goes, either during football match or in his coding sessions. He could be a bro code as well. So without wasting my words more, let's welcome Arif. Hello Arif, how are you doing? Ma'am, I'm fine. How are you doing? I'm good. And Arif, because today we are in CTY, so please introduce yourself to the audience. Hello, everyone. First of all, let me just say that if any time of this podcast I randomly fall off the chair, forget my train of thought, or start talking about offside rules in the middle of a coding question, just know that's all a part of the Arif experience, trademark. I'm Arif Raj, part time football fanatic, part time coding nerd, and full time professional at getting injured in the most dramatic ways possible. Whether I'm sliding across a football field or crashing a Python program, one thing's for sure I never do boring. So tighten your seatbelts. No, seriously, I might trip again. And get ready for a fun ride full of stories, sarcasm, and some serious bro code energy. Let's go. Okay, let's go then. So Arif, tell me about how many injuries does it take you to qualify for CTY? Ma'am, actually, I think at this point I should be issued a frequent fracturer membership card by the CTY. I mean, between the sprained ankles, a near miss with the goalpost, and the time I tripped over my own shoelace during the warm up, I've hit my injury quota twice over. Mm-hmm. So fractures, major injuries, and you are still striving for more. So are you brave or just dangerously optimistic? Oh, that's a tough one. I'd like to Mhm. say I'm brave, but you see how confidently I walk into situations that usually end up in bandages. You'll start to think that I might just be wildly optimistic with a loose grip on reality. Like, I once went out for a bicycle kick without a bicycle. But Mm-hmm. hey, no regrets, just better stories and more X-rays. अच्छा आरिफ, we will talk little bit serious now. आप मुझे अपने फुटबॉल के बारे में बताइए, फुटबॉल के लिए जो आपका लव है. And under the mentorship of PM Modi, India Khelo Football is organizing biggest trials in India in the year 2025. So let us know more about IKF. बस इतना याद रखना कि काजोल जिस मूवी की मेकिंग में गिरती है वो हिट जरूर होती है. So do you see yourself somewhere in national teams in near future? Haha. That's true that in whichever movie Kajol falls, it becomes a hit. Well, let's get back on topic. Football is my full time obsession and part time injury sponsor. When I'm on the field, it's like everything else disappears, except, of course, gravity, which is always ready to bring me down. Not just about playing the game, but representing the country. If Kajol can fall during movie shoots and make blockbusters, maybe I can fall during trials and make it on the national team. Bruises heal, dreams don't. Wow, good. बहुत सही एकदम एप्ट आंसर है आपका. गुड, वेरी नाइस. सो Thank you, ma'am. आरिफ, तुम मिडफील्ड में खेलते हो और मैं जिस जनरेशन की हूँ और जैसे मेरी अपब्रिंगिंग है उस हिसाब से बस मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मुझे फुटबॉल का एफ आता है, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं आता है. मैंने क्रिकेट बहुत देखा है और क्रिकेट में देखा है कि विकेट कीपर्स जो होते हैं वो पीछे से जो
स्टम्प्स होते हैं उसके पीछे से बैकअप करते रहते हैं। तुम भी क्या कुछ ऐसी ही मेंटरिंग करते हो और खेलते हो? और मिडफील्ड में क्या करते हो, कैसे खेलते हो, इसके बारे में थोड़ा हमें भी नॉलेज दो। हाँ मैम जरूर। Midfielders are basically the whole glue that holds the team together while running around like caffeinated squirrels. We attack, we defend, we shout instructions, and occasionally we act like unofficial referees. It's like being the team's Wi-Fi router. Everything passes through us. Also, unlike goalkeepers who just stay in one place, we get to see the whole field and occasionally chase butterflies if the match gets boring. Just kidding, sort of. Arif, what Yes. is the motto behind organizing IKF? Please let me know about the process from trials to different parts of this journey. The game is still too way back from other games. So, how the government is, doing the processes to uplift it? हाँ मैम, आईकेएफ का असली मोटो होना चाहिए इंडिया कैन ड्रिबल ड्रीम्स टू। वो जर्नी जो होती है वो ट्रायल्स के साथ स्टार्ट होती है। पूरे इंडिया से प्लेयर्स आते हैं, सारे स्किल लेवल से आते हैं, पर आते किसके साथ हैं? बस पैशन के साथ और बूट्स के साथ। उधर से वो सिलेक्शन के बारे में होता है, एंड मे बी इवन गेटिंग नोटिस्ड बाय इंटरनेशनल क्लब्स। Mm-hmm. फुटबॉल इंडिया में क्रिकेट के शैडोज में बहुत लंबी देर के लिए रहा है। अभी उसे लाइमलाइट में लाने की ज़रूरत है, प्रेफरेबली विद मी डूइंग अ बैक फ्लिप गोल, और एटलीस्ट अटेम्प्टिंग इट विदाउट फेस प्लांटिंग। Mm-hmm. So, Arif, that's a quick question कि either football or coding, and why? टफ वन। फुटबॉल में मुझे बॉल को चेस करने को मिलता है, और कोडिंग में मुझे बग्स को चेस करने को मिलता है। एक में मुझे पसीना आता है और दूसरे में मुझे दो सुबह के 2 बजे स्क्रीन पे रहना पड़ता है। Hmm. पर अगर मैं बोलूँगा तो फिर बहुत हार्ड चॉइस है। आई विल चूज फुटबॉल बिकॉज इट मेक्स मी फील मोर अलाइव। Okay. I have read something like you are into Olympiads or something like that. So tell me more about logical Olympiad, logical reasoning Olympiad, and how do you score somewhere in between Olympiads and MUN? Okay, imagine sitting in a room full of tricky puzzles while pretending you're the next Sherlock Holmes, minus the pipe and the hat. लॉजिकल रीजनिंग मेंटल जिम्नास्टिक्स की तरह है, पर उन लोगों के लिए है जो जिम्नास्टिक्स को उतना पसंद नहीं करते। आपको 10 स्टेप आगे सोचना पड़ता है, और कभी कभी आजू बाजू में। दैट इट्स व्हाट आई डू व्हेन आई एम नॉट बिजी फॉलिंग ड्यूरिंग फुटबॉल और डिबगिंग इन पाइथन। And what does it all needs to become a master of all trades? पहला रूल, एम्ब्रेस बीइंग टेरिबल एट थिंग्स एट फर्स्ट। मतलब पहले एम्ब्रेस करना रहता है थिंग चीज़ों पे अच्छा नहीं होना। पर उसके बाद में लर्न करते रहो until you are terrible with confidence। Okay. मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, और थिंग्स को ब्रेक डाउन करता हूँ, वो कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे ठीक करें अगर उनमें कुछ इश्यूज हैं। अम, और ओकेजनली मैं नई चीज़ें भी ट्राई करता हूँ। क्यूरियोसिटी मेरी सुपर पावर है, एंड दैट एंड द एबिलिटी टू गूगल लाइक अ निंजा। So, Arif, tell me your experience regarding MUN and in which type of politics you are interested into, and what is your favorite topic in which you speak at length? एमयूएन में मैं वहाँ जाता हूँ क्लास क्लाउन से ग्लोबल डिप्लोमेटिक बनने में। I once debated food insecurity so passionately, I even forgot that I was hungry. मुझे पॉलिटिक्स पसंद है जो चेंज पे फोकस करती हैं, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और मेंटल हेल्थ। Basically, things adults should be fixing, but somehow pass it on to the youth to raise awareness. Okay, so what is your opinion about young politicians in
Indian politics. And do you know about the thing about a policy in which PM Narendra Modi has announced कि वो करीब करीब 1 लाख न्यू यंग जनरेशन के लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करेंगे. दैट इज अ मोटो ऑफ अ गवर्नमेंट इफ आई से. आपको इस बारे में पता है? और अगर नहीं पता है तो मुझे लगता है आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए इस बारे में, बिकॉज इंडिया नीड्स अ गुड एंड एजुकेटेड पॉलिटिशियन. यस मैम, डेफिनेटली आई डू। मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं चला है, पर आपने अभी बताया है तो फिर मैं ज़रूर इस पे रिसर्च करूंगा और तैयारी अभी शुरू करूंगा। सो आरिफ, आपने बताया था कि यू आर इन क्लास 8. इट इज अ वेरी इट्स अ मिडिल स्टैंडर्ड स्कूल. सो अ फेज वेयर यू हिट puberty. So how do you see the boys and girls of your age, and how do you manage to keep the bro code with everyone? Puberty. The time when your voice breaks, your brain gets confused, and suddenly you notice how weird everyone else is, and how weird you are too. मैं बिलीव करता हूँ सबके साथ चिल रहने में, और उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने में, और ब्रो कोड सिंपल रखना, जर्क नहीं बनना है हमें. Share your snacks and never ever snitch on your bro, even if he accidentally deletes his entire science project. Hmm, मेरी बात है. सो आरिफ, ऐसा देखा गया है कि great minds things alike. And I can see that you are a chatterbox. So you would be having your friends who are unstoppable like you, always cracking jokes, making fun in the class. और I am sure कि क्लास में टीचर्स तुम्हें डांटती भी होंगी, पनिशमेंट्स भी देती होंगी. तो बहुत ऐसे में ज्यादा. हंसी, हाँ, क्लास के बाहर भी खड़ी करती होंगी. तो ऐसे में हंसी को कैसे रोक पाते हो? क्योंकि फालतू की हंसी एक हाँ. बारी आ जाए तो फिर वो रुकती नहीं है. एज इट्स सेड एज कि लाफिंग इज कंटेजियस. हाँ मैम, लाफिंग तो ज़रूर कंटेजियस है, पर मैं रोक नहीं पाता हूँ उसे. मैं कोशिश तो ज़रूर करता हूँ, पर मेरे जो दोस्त होते हैं वो ऑलरेडी हंस रहे होते हैं, तो फिर गेम खत्म. टीचर्स मुझे ग्लेयर देती हैं कि वो जो बोलते हैं, पर मेरा ब्रेन सुनता है से समथिंग फनी क्विक. हिलेरियस कंपल्सिवनेस डिसऑर्डर. सो आरिफ, अपने लॉजिकल माइंड से बताओ कि इस दुनिया में सब कोई एक दूसरे को बराबरी की नजर से कब देखेगा? ये वॉर्स जो है ये क्यों क्यों हो रहे हैं, और ये क्यों नहीं होने चाहिए? लिमिटेड मीन्स के साथ हम सब अपनी जिंदगी को कैसे खुश रख सकते हैं? मैम, ऐसी चीज़ है, हम जब पैदा होते हैं हमारे ऊपर लेबल नहीं होता है, वो दुनिया ऐड करती है. हाँ, इक्वालिटी तब आएगी जब वर्ल्ड हमारे हमसे पूछना बंद करेगी कि कौन ज़्यादा अच्छा है, और पूछना शुरू करेगी कि हम कैसे मदद कर सकते हैं. वॉर्स आउटडेटेड हैं. वी कैन जस्ट डू अ डांस बैट कैन वी जस्ट डू अ डांस बैटल इंस्टेड. ये हम्म. हैप्पीनेस इस इन चीज़ों में नहीं है. ये स्टोरीज में है, हग्स में है, और ये पता लगने में है कि आपके वजह से कोई खुश है. हम्म. So God has given you something very, very important, which one hardly have these days, जो है खुश रहने की एबिलिटी, जो सब में नहीं होती है. तुम अपने घर और अपने आसपास में कैसे हैप्पी इन्वायरमेंट रखते हो, और अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहते हो? मेरी जगह पे इट्स ऑल अबाउट सिली जोक्स, मूवी नाइट्स, एंड सरप्राइजिंग माय मदर बाय क्लीनिंग द हाउस विदाउट हर नोइंग इट. मुझे हम्म. लगता है कि हैप्पीनेस न्यूटेला जैसे स्प्रेड होती है, वन स्पूनफुल एट अ टाइम. अगर मैं सबको एक दिन हंसा सकता हूँ, तो फिर वो दिन को मैं अच्छा दिन कह सकता हूँ. तो क्या खाने में, क्या करने में, और क्या नहीं करने में खुशी होती है आरिफ को? मैम, खाने में तो बिरयानी. अ, दिन में माँ से डांट नहीं पड़नी चाहिए, तो फिर वो अच्छा दिन कह सकता हूँ मैं उसे. और मेरे फैमिली को एक आध बार हंसा हंसा दूँ तो फिर बहुत अच्छा
महसूस दिन होता है। बन जाता है। एंड हाउ अबाउट योर सिबलिंग्स? मैम, आई हैव वन सिबलिंग, शी इज़ माई सिस्टर अरात्रिका। अपन दोनों ऐसे खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम एक दूसरे के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अपन दोनों एक दूसरे का सब कुछ जानते हैं। कुछ भी हो तो फिर मतलब हम प्लान करते हैं कि हम हमारी फैमिली को कैसे हंसाएं। हम्म। आपसे वो छोटी है? हाँ मैम। ओके। 1 साल। 1 साल छोटी है। एंड लड़ाई झगड़ा होता है? कभी कभी। और जब होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाते हैं मैम। एंड यू आर जस्ट अपोजिंग वॉर्स राइट नाउ? चलो ठीक है, अच्छी हाँ बात है, मैम। थोड़े थोड़े वर्ल्ड वॉर्स होने चाहिए भाई बहनों के बीच में, देन इट स्ट्रेंथेन्स योर रिलेशनशिप। यस मैम। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जो तुमसे पूछनी है, बिकॉज इट इज रियली अमेजिंग टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी। उसमें से एक जो एक एट्रीब्यूट है वो ये है कि आपका जो पर्सनल एंडवेयर है वो है वॉइस असिस्टेंट टॉनिक, जिस पे आप काम कर रहे हैं। हाउ यूजफुल इट इज, एंड टेल मी हाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉनिक? मैम, टॉनिक का फुल फॉर्म है टू ऑप्टिमिस्टिक नर्ड्स इन चार्ज। वो मेरा पर्सनल एआई बडी है। मैं उसे हे टॉनिक बोलता हूँ और फिर कुछ भी बोलूँ तो फिर लाइट्स ऑफ करने को वो ऑफ कर देता है। प्ले सम सूदिंग म्यूजिक वो भी प्ले कर देता है। मेरे स्पॉटिफाई अकाउंट से कनेक्टेड है तो फिर बहुत सारे काम कर देता है। अलार्म सेट कर देता है और पानी बार बार पीने को मम्मी के तरह बोलता है। इंस्ट्रक्ट करता है? यस मैम। बट मैं उसे मम्मी ट्रेन की कर रहा तरह हूँ एनोइंग कि तो नहीं लगता? मम्मी जैसे बार बार नहीं मैम। बता। मैम, मैं टॉनिक को ऑफ कर सकता हूँ, मम्मी को नहीं। ओह कूल। मम्मी सुन रही होंगी कहीं ना कहीं। सो हैव यू मेड दिस टॉनिक? नो मैम, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। हम्म। अ, जो नया घर रहेगा मैं उसमें इंटीग्रेट करूंगा टॉनिक को। ओके, अभी इट इज स्टिल इन प्रोसेस कि उसको आप पूरी तरीके से बना पाओ। अभी उसने आपके ऑर्डर्स लेने शुरू कर लिए हैं, है ना? हाँ मैम। हम्म। Arif, what is that one thing which you want to make as a legacy for the kids who are still toddlers? Not toddlers, but like young kids like you. मुझे बच्चों को ऐसी दुनिया में ग्रो कराना है जिसमें वो क्वेश्चंस बिंदास पूछ सकते हैं। मिस्टेक्स भी बन मिस्टेक्स कर करें सकते। और हाँ कर सकते हैं और बार बार गिरते रहें मेरे जैसे, पर हम्म। हमेशा बॉस की तरह वापस उठ जाएं। मुझे पसंद आएगा अगर मैं कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए एक ऐप लीव करूं या ऐसे कुछ लीव करूं जिसमें जो बच्चे हैं आजकल के वो कुछ नया सीख सकते हैं जजमेंट के जो फियर है उसके बिना। मतलब बेसिकली फॉल, लाफ, लर्न एंड रिपीट। Nice. So you could be a good mentor as well. अच्छा, यस गाना मैम। वाना सुनते हो? बच्चे आजकल गाना हाँ। सुनते हैं, सोशल मीडिया में बहुत है, इंस्टाग्राम में डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इट? मैम, मैं भी गाने बहुत सुनता हूँ पर मतलब सोशल मीडिया पढ़ाई इज द प्रायोरिटी ऑफ कोर्स। बट गाने वगैरह ऐसे लाइफ में कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसे आप टाइम पास कह सकते हैं और खुद के लिए करते हैं। आरिफ, आप तब इसका मतलब है कि आप म्यूजिक भी सुनते होंगे। और अगर म्यूजिक सुनते हाँ। हैं तो कैसा म्यूजिक सुनते हैं, इंडियन की वेस्टर्न? और इंडियन म्यूजिक में आपको कौन ज्यादा पसंद है, एज अ सिंगर और एज अ म्यूजिशियन? मैम, दोनों ही सुनता हूँ मैम, वेस्टर्न और इंडियन दोनों। हम्म। इंडियन म्यूजिक में मुझे सनम वाला बैंड बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और अरिजीत सिंह के भी गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा।
अ, गाते भी हो कि सिर्फ सुनते ही हो? नहीं मैम, सिर्फ सुनता हूँ। सिर्फ सुनते हो। गुड। और कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो? बिकॉज इन सब चीजों में मुझे लग रहा है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात हमारी नहीं हुई है, जो आपने बताया नहीं है अभी तक का, कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो कि नहीं। हाँ मैम, मैं पियानो प्ले करता हूँ। वंडरफुल। हम्म। I can assume that a person who is very good in maths, that's I have repeated in my earlier shows as well, कि जिसका भी मैथ्स अच्छा होगा, आई कैन सर्टेनली से कि उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा होगा। आइदर म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा होगा, और ही वुड बी सिंगिंग और कंपोजिंग समथिंग। ये एक गॉड गिफ्ट होता है, म्यूजिक, मैथ्स एंड मेडिटेशन। इट कम्स इन अ बुके। यस मैम। सो आरिफ, पढ़ाई के बारे में थोड़ी बात कर ले। पढ़ाई के हाँ बारे मैम। में तुम्हारा क्या ख्याल है? और क्लासरूम टीचिंग और प्रैक्टिकल टीचिंग्स में क्या डिफरेंस तुम्हें लगता है? And if you need to modify something in the education system, what it would be? And why the education should be made easy that everyone can understand it? Ma'am, right now the education feels like a Netflix series with too much filler and less plot twists. We need fewer exams and more experiments. रटना कम है और असली दुनिया की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ज़्यादा करनी है। हमें टैक्सेस के बारे में, ऐसी चीज़ें के बारे में समझा दीजिए हम जब 30 साल के हैं उससे पहले और कंफ्यूज रहें। उसे विजुअल बनाइए, फन बनाइए, और मे बी संडे को होमवर्क मत दीजिए। वेरी गुड। अच्छा, ये मुझे एक बात बताओ, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, यू वुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑन एवरीडे एक्टिविटीज, तो मे बी तुम्हें भी पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो हमारी मदर टंग है उसको कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले से ही सीबीएसई ने उसको कंपल्सरी कर दिया है, कि जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो क्लास 2 या 3 तक के बच्चों को अब इंग्लिश हिंदी के अलावा वो अपनी मदर टंग में भी, मातृभाषा में भी बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर से अबाउट द मदर टंग? क्योंकि एक जनरल, अभी आप में भी छोटे हैं, 100% में भी आपको पता होगा, बट इट इज जस्ट माई ड्यूटी टू लेट यू नो, देयर आर कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, जहाँ पे हमें जाने के लिए, पढ़ने के लिए वहाँ की लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी होती है। when we go to other countries to pursue our studies further, तो जब वो लोग अपनी मातृभाषा को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, सो वी हैव thousands ऑफ बोलियां एंड एटलीस्ट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। why should we not concentrate on these as well? मैम, अभी जो गवर्नमेंट ने मदर टंग का शुरू किया है वो बहुत अच्छा शुरू किया है मेरे हिसाब से। हम्म। आपने सही बोला है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, वो अपने मदर टंग पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और हम्म। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेटिक या गवर्नमेंट में कोई जॉब करना चाहते हो जिसमें आपको ट्रैवल करना है, तो फिर उसमें ऑब्वियसली उनकी भाषा समझने ज़रूरी रहेगी। और इंग्लिश और हिंदी तो ऑफ कोर्स, मतलब इंडिया में ट्रैवल करोगे तो हिंदी इज़ लाइक अ जनरल लैंग्वेज अलोंग द नॉर्थ। हम्म। और इंग्लिश अगर फॉरेन जाओगे तो फिर इंग्लिश इज़ ऑल्सो जनरल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और मदर टंग आपको सीखना मतलब अलग फीलिंग आती है कि आप हम खुद के जो एंसेस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इन सब के साथ उस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो, जिसमें वो बात करते हैं, तो फीलिंग अलग होती है। क्योंकि मैंने एक चीज गौर की कि जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो जब बात करते हैं वो हमेशा ही फ्रेंच में करते हैं, और जर्मन्स भी जब बात करते हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज में ही करते हैं। तो उस जगह पे जब पीएम मोदी किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के हिंदी में बात करते हैं, तो आई रियली फील वेरी प्राउड कि ही इज टेकिंग द लैंग्वेज टू सम अदर लेवल। तो मुझे लगता है कि जो बचपन से ही सिखाया जा रहा है, दैट शुड बी अ बिगर अपॉर्चुनिटीज फॉर द कमिंग जनरेशंस, कि वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दें। और आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? मैम, मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, और एक्सप्लेनिंग के लिए हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो फिर मैं कुछ स्कूल वगैरह का एक्सप्लेन करना रहता है तो मैं
इंग्लिश में जनरली बात करता हूँ, पर वरना मैं हिंदी में भी बात करता हूँ। अच्छा, so because I just asked you because you live in Pune, so do you know Marathi? मैम, समझ में आती है, पर मला उतना माहित नहीं। गुड। मुझे तो एकदम नहीं आती है आहे के अलावा। आरिफ, अब तक आपने बहुत सारे लाइफ में बहुत सारी चीजें क्रॉस की है, बहुत सारे हर्डल्स भी क्रॉस किए हैं, बट कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल रहा हो और हमेशा के लिए ही कहूँ तो अनफॉरगेटेबल ही रहेगा। मैम, मेमोरी तो इतनी अच्छी नहीं है मेरी, पर जिस रात को मुझे पता चला था कि मैं वीर गाथा में क्वालिफाई हुआ हूँ, उस वो रात मेरे लिए अनफॉरगेटेबल रहेगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे 3 बार बताया था, क्योंकि रात के 11 बजे हुआ था और मैं सो रहा था। तो फिर मैं उठा, फिर मैंने बोला हाँ, और फिर वापस हो गया। ऐसे 3 बार हुआ। फिर उसके बाद में मेरे मम्मी पापा ने सोचा सोने दो इस बेचारे को, अभी नींद पूरी हो जाएगी तब अम, बता देंगे। और सुबह बताया तो फिर उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमने रात को बताया था, तू सो रहा था। हम्म। तो सो दैट वाज द अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। तो उस एक्सपीरियंस से मुझे बताओ कि जैसा कि आप दिल्ली आए और आपने बहुत सारी चीजें देखी, पार्टिसिपेट किया, यू गॉट द प्राइज एंड द अवार्ड मनी एवरीथिंग। आफ्टर देन, हाउ योर लाइफ हैज टर्न्ड एंड व्हाट गुड थिंग्स यू हैव टेकन फ्रॉम दैट इवेंट? मैम, लाइफ तो उसके बाद में बहुत अच्छा रहा है। और क्या बोल सकता हूँ। अम, ऐसे स्पीकिंग स्पीच स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, उस पे ही मैं मतलब काम कर रहा हूँ। एमयूएन में मैं बेस्ट डेलीगेट जीता था लास्ट ईयर। होपफुली इस साल भी जीतूंगा। और अ, हाँ, यही है। और वो जो इवेंट से मैंने सीखा था कि हम्बल रहना है, और अम, जीतना भी अच्छा है, पर हमेशा जीतना जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने उसके बाद वीरगाथा का दिया है, पर मैं अभी तक वापस नहीं सेलेक्ट ला नहीं हो पाया हूँ। पाए? कोई बात हम्म। नहीं, देयर वुड बी मेनी मोर कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा एंड होपफुली यस मैम। आई के एफ इज वन ऑफ इट। जरूर यस उसमें मैम। तुम्हारी जितनी मेहनत है उसमें तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए एंड बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। एक कंपटीशन जीत करके, मतलब इट वाज अ नेशनल इवेंट इफ आई से, ऐसे कई सारे इवेंट्स अभी तक का हो चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जीते हैं। क्या आप एक कंपटीशन जीतने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है विच यू कैन टेक इट फॉरवर्ड इन कमिंग इयर्स? यस मैम, ऐसे फील होता है। और आपको ये भी पता चलता है कि आप ये कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे अगर आप नहीं जीते हो। नहीं जीतना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर जीतना और पोटेंशियल रियलाइज करना ये ऑफ कोर्स होता है। वीर गाथा के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरे पब्लिक स्किल्स देखे। जब मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, तो उसके बाद में वो मेरे पब्लिक स्पीच स्किल्स में ही मतलब ऐसे बहुत सारा इवेंट्स करा में पार्टिसिपेट करा रहे हैं। और इट्स ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट्स। Okay. तो अब हम क्या अपने सिस्टम में ये बात उसको और बहुत जैसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट के साथ रख पाते हैं क्या, कि हमें बच्चों को खुद डिस्कवर करने देना चाहिए कि उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं विच दे कैन कैरी फॉरवर्ड इन देयर लाइफ्स? या जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ हमेशा रहें, बट स्पून फीडिंग और बच्चों के ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना करके रखना, वो क्या बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाता है? आपका क्या नहीं ओपिनियन मैम। रहता है? हाँ मैम, मेरा ओपिनियन तो यही है कि सर्टेन एज तक ही स्पून फीडिंग करना चाहिए। और तब तक फिर उसके बाद में वो उनकी खुद से पोटेंशियल रियलाइज करेंगे। फिर उसके बाद खुद
रिजल्ट्स दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को। और ऑफ कोर्स अंडर प्रेशर में तो सिर्फ रोहित शर्मा ही अच्छा खेल पाते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। हम बच्चों के लिए तो अंडर प्रेशर उतना अच्छे से काम नहीं होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा वो बच्चे नहीं हैं. They हाँ have मैम। seen the world and they have faced the struggles. So तब वो हम्म। यहाँ तक आप पहुंचे. It is too early to say कि, but it is a, you have set a good example. यस मैम, रोहित शर्मा वो वानखेड़े स्टेडियम में अलाउ नहीं होते थे और आज उन स्टेडियम में उनका स्टैंड उनके नाम पे हो रहा है मैम। Correct. स्ट्रगल तो बहुत हुई है। हम्म. आपकी फेलियर्स ही आपकी जर्नी डिस्क्राइब करते हैं. द मोर यू विल फेल, उतना ज्यादा आप ऊंचा उठते हैं और उतना बड़ा अपने लिए एक नाम कमाते हैं, और अपने लोगों के लिए आप फिर उसी तरीके से स्लोली काम भी करते हैं. So, Arif, winning and losing is a part of a journey. And what are your takeaways? Like इतने सालों से फुटबॉल खेल रहे हो, आई गेस बचपन से ही खेल रहे हो, कई बार इंजर्ड हुए हो, और यू हैव ब्रोकन योर लेग मेनी टाइम्स, आई गेस 6 7 टाइम्स, कुछ इस तरीके का यस मुझे मैम। पता है. सो अपनी बोन्स पे किस तरीके से काम करते हो, रेसिस्टेंस पे कैसे करते हो, क्या बहुत आक्रामक प्लेयर हो, या यू सी द सिचुएशंस और अपने राइट और लेफ्ट में जब फुटबॉल आती हुई देखते हो तो यू कीप योर पेशेंस एंड देन यू जंप इनटू द कंक्लूजन, किस तरीके से होता है ये? मैम, जीतना जीतने में बहुत मज़ा तो आता ही है, पर हारने में आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ से बने हुए हो। मैं एक बार कोडिंग कंपटीशन हारा हुआ हूँ क्योंकि मैं सेव वाला बटन दबाना भूल गया था। तो और हाँ मैम, मतलब पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा फुटबॉल खेलते हुए। रश करोगे और नॉट गुड डिसीजंस लोगे, बैड डिसीजंस लोगे तो फिर मतलब फाउल मिलेगा, ऐसा कुछ होगा आपके टीम को, आप गोल नहीं दे पाओगे, गोल्स नहीं दिला पाओगे और खुद गोल्स खा जाओगे, तो फिर पेशेंस रखना ही रहता है। अम, पर हारने में कोई बुरी बात नहीं है। जब आप पहचानते हो तो फिर आप अपने मिस्टेक्स रियलाइज करते हो। पर अगर आप मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो तो फिर तो ऑफ कोर्स खराब बात है। यू हैव टू work on it more, and then you'll immediately start to see the impact. So though it is too early to say, but do you prefer to do meditation? Because meditation से बहुत calmness आती है, और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको बहुत at times fiercy भी होना पड़ता है, but when you will keep your cool, so you will tackle the situations. मैम, मेडिटेशन मेडिटेशन तो नहीं करता हूँ, पर हर सुबह योगा करता हूँ। हम्म. ट्रेनिंग से पहले योगा करता हूँ। इट हेल्प्स अ लॉट। meditation तो I have not like started it or anything, but my father meditates every morning, and seeing the impact it has on him, I think I should start meditating too. ओके. ये ना हो कि बहुत मेडिटेशन करने से चुप ही हो जाओ. आरिफ, पर्सनल फ्रंट पे बताओ कि घर पे किस बात पे ज्यादा डांट पड़ती है. लाइक यू मेक योर ओन बेड, या घर में कुछ कुकरी का कोई काम करते हो, या कुछ मम्मी को क्लीनिंग में हेल्प करते हो. बिकॉज एक एक दिन करके यू विल बिकम अ मैन समडे. सो आगे आने वाले टाइम के लिए खुद को कितना तैयार कर रहे हो? बिकॉज आज के टाइम पे व्हेन यू पीपल आर ग्रोइंग, द कंडीशंस वुड बी नॉट द सेम, जहाँ पे लड़कियां जो हैं वो सिर्फ घर पे रहेंगी. इट वाज अ सिचुएशन, इट वाज अ प्रैक्टिस इन अर्लियर इयर्स. अब आपके साथ का जो भी बच्चा है वो आपके बराबर का है, और उसको भी ऑलमोस्ट उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हाउ यू आर preparing yourself for the coming life? मैम हाँ, मैम मेरी मम्मी को क्लीनिंग और मेरी बहन भी हेल्प करती है। मैं बेड बनाता हूँ खुद का और मेरी बहन को भी हेल्प करता हूँ। और हर संडे हमें
मम्मी से बच के रहना पड़ता है क्योंकि संडे को वो घर पे रहती हैं और खुद क्लीनिंग को देखती है। तो फिर हम पहले से ही सुबह उठ के सब कुछ करके रखते हैं और फिर वो उसके बाद में जो हमने किया है उसे खराब करके फिर से करती हैं। और फिर ऐसे करके ऑफ कोर्स इट्स हेल्पिंग मी टू बिकम एन एडल्ट। ओके, कुछ छोटा मोटा खाना भी बनाते हो? मैम अभी तो चाय बनाना ही सीखा है और कुछ नहीं आता है। ओके, ठीक है। बिग फील्ड के अलावा कोडिंग का यूज करके कभी सोचा है क्या कि फुटबॉल का गेम कंप्यूटर में बना पाओ और उसको लोगों के लिए अवेलेबल करा पाओ? मैम मैं एक फुटबॉल का गेम खेलता भी हूँ मोबाइल पे, उसे एफसी मोबाइल बोलते हैं। उस वो जब मैं खेलता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये कोडिंग वगैरह कैसे की होगी। मैं फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मैं प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके सोचता हूँ। तो फिर उसके हम्म। हिसाब से हाँ मैं मतलब सोच तो रहा हूँ बनाने का, पर अभी तक ऐसे स्टार्ट प्रोटोटाइप वगैरह कुछ नहीं बना है। Before I say a final goodbye, just the last question which arises in my mind right now, कि आगे चल करके क्या बनने की सोची है? Because you are into many things, finally you have to pick one thing to become something. So, as a career, अभी तो you are in eighth. Been it would be 4 more years, but कुछ ऐसा कुछ बना रखा है दिमाग में आइडिया? मैम अभी तो It's too आईकेएफ early. का हम्म। नहीं, नॉट टू अर्ली। मैंने तो जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था तभी मैं मेरी मम्मी को सल्यूट करता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, हम्म। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नाम रोशन करूंगा। पर अभी मतलब मुझे फुटबॉलर बनना है। आईकेएफ ट्रायल्स इसलिए दे रहा हूँ। ओके, हाँ, छोटे छोटे आपके एम्स हो विद टाइम्स एंड वो सारे कॉन्कर करके वट एवर यू वांट टू बिकम, जस्ट अचीव इट. सो यस मैम। Arif, I must say that you are hilarious and way more you to show up. Keep rocking and best wishes from all of us from CTY. And I'm sure that the audience would have also liked and enjoyed the session. So thank you for choosing Catch Them Young, Arif. Be happy always and may God bless you. और जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहते आई हूँ कि कैच देम यंग ये एक बच्चों का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उनसे हर तरीके की आड़ी तिरछी सीधी सब तरह की बातें करते हैं, क्योंकि एवरी डे वी चैलेंज आवरसेल्व्स एंड इन फैक्ट वी चैलेंज सोसाइटी एज वेल. लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि सीटीवाई में आप किस तरह के टॉपिक्स देखना चाहते हैं हमें बताएं. सीटीवाई के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल में हमारी पूरी बातचीत को देखें और हमें सब्सक्राइब करें. आरिफ को उसके वर्क के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए उसे भी मैसेज करें. और आज के लिए बस इतना ही. इंडिया के किसी और शहर से किसी और बच्चे से मुलाकात करेंगे. बस आज के लिए इतना ही काफी है. सीटीवाई की पूरी टीम की ओर से आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया. लाइक एंड सो सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू.